Hello guys, so now we will be studying about the energy level diagrams of molecular orbitals. We have already known what is bonding molecular orbital and anti-bonding molecular orbital. Now we will be doing how to fill up this molecular orbital just like we did while we have filled up the atomic orbitals, that is 1s, 2s, 2p, 3s, like that. So more or less it is the same procedure. First of all, I will go into the theory and some of the subtle concepts that you should know before going into this in deep thought. Okay, so the first thing is what are molecular orbital and how it is formed. That you already know. There are two things I want to say to you before I start the energy level diagrams or the how to fill up the molecular orbitals. So first thing is, how does the molecular orbital form? We have already studied. Molecular orbital is formed by overlap of AO, right? Atomic orbital का overlap से आपका molecular orbital बनता है, ठीक है? So energy of molecular orbital, because at the end of the day each and every orbital is an energy level. Okay, we have already studied this. Each and every orbital is an energy level. So energy level of molecular orbital depends on what? It depends on energy of overlapping AO. This basically means is that if the energy of the AO or the atomic orbitals is high, then the energy of the molecular orbital will also be high. So if you suppose take one 1s orbital, another 1s orbital, so it is going to form one anti-bonding orbital and one bonding orbital, right? Okay. So the energy of these molecular orbitals will always be defined by the 1s orbital's energy. Now if I take 2s, if I take it 2s at this moment, so what happens is, in this case you can see the energy levels are not much in terms of the expansion over here, but here it is much larger, because if I talk about only the anti-bonding and compare these two with respect to this axis, then in case of 2s orbital, the 2s atomic orbitals are having much higher energy than 1s atomic orbitals. This we already know. So as the atomic orbital is having higher energy, the molecular orbital will also have higher energy. Okay, so that is one thing that you have to remember. Another important thing is what happens about the extent of overlap. Okay, so if extent of overlap of AO is more, ठीक है, extent of overlap in case of AO अगर ज्यादा होता है तो lowering of bonding molecular orbital and increase, this is basically lowering of energy, ठीक है, lowering of energy of bonding molecular orbital and increase of energy of anti-bonding molecular orbital is more, ठीक है. So if the extent of overlap between two AOs are more, then the energy increase and the energy decrease of anti-bonding molecular orbital and bonding molecular orbital respectively will be higher, ठीक है. So please note down all these things, and after that these are subtle concepts that I wanted to discuss. So these things you have to know, because while we will be drawing this energy level diagram, first concept that we had is bonding orbital will have lesser energy, so it is at the bottom. Anti-bonding having higher energy, it is at the top. Number one. Number two thing that we just now we knew
that the molecular orbitals will be placed, suppose this 2s का जो molecular orbital होगा that will be placed at a higher energy level than 1s molecular orbital because 2s atomic orbital will be having higher energy. ठीक है, so these things are very important and you have to understand all these things. ठीक है, so please note down this. Okay, so now we'll be studying about the energy level diagrams. I have already written some scribbled up in the board. It looks very dirty, but hopefully I'll be able to make you clear about this in very short time. That is why I scribbled in the board much earlier than what I'm going to teach. I'm not going to write it again. So explanation करने में थोड़ा जल्दी होगा और आपके लिए भी सुविधा होगा. ठीक है, तो देखते हैं. Energy level diagrams, as the name suggests, it is basically going to define the energy of the molecular orbitals. Atomic orbitals will combine and form molecular orbitals, and there will be energy associated with each and every molecular orbital. And we are going to fill up the electrons according to the energy. पहले लोअर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद हायर एनर्जी लेवल में आपका इलेक्ट्रॉन जाएगा. ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में आपको फिल अप करना है. So what is the order and how do we fill up? Like there were some rules like 1s, 2s, 2p, 3s, those kind of rules were there. There was a series where we used to fill up the electrons. Now, in case of molecular orbital also, there is same series. Okay. Now, this is the series basically in case of molecular orbitals. I know it looks very complicated, but believe me, my friends, I'll just show you how it is not at all complicated. It's very easy to remember. We just do not give enough time to it because already it is at the fag end of the chapter chemical bonding. That is why we tend to give much lesser time to this molecular orbital theory and it makes it difficult. तो इसीलिए हम लोग तो अभी बहुत बाद में कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. ठीक है, तो फ्रेश माइंड से देखो आप लोग कैसे हम लोग इसको फिलअप करेंगे. याद कैसे रहेगा ये आपको हम याद करा देंगे, इतना तो मेरा गारंटी है कि आज के बाद आप भूलोगे नहीं. याद रहेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी किसके बाद कौन सा फिलअप करना है, एकदम याद रहेगा. लेकिन उसके पहले जो बेसिक चीज है वो हमको समझना पड़ेगा. वी हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक थिंग्स एंड आफ्टर दैट याद कैसे रखना है हम आपको बता देंगे. चलिए देखिए, दिस इज एज पर द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी. मैंने लिखा है सिग्मा 1s देन सिग्मा स्टार 1s. तो आप मुझे पूछो सर सिग्मा 1s कैसे पहले लिखा उसके बाद सिग्मा स्टार 1s क्यों लिखा. दिस इज एज पर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी. What is sigma 1s? Sigma 1s is a bonding orbital. ठीक है, this is a bonding orbital. And what is sigma star 1s? This is a anti-bonding orbital. ठीक है, तो आपको ऑलरेडी पता है, आपके पास आंसर है. बॉन्डिंग ऑर्बिटल के एनर्जी हमेशा कम होता है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के एनर्जी ज्यादा होगा, है ना. तो इस केस में देखिए कैसे फॉर्म होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. First of all, there will be 1s atomic orbital coming through and another 1s atomic orbital coming through to form a sigma bond, right? 1s and 1s can only form sigma bond. So they come through, they combine. So there are two atomic orbitals. So there will be two molecular orbitals. So one molecular orbital will be bonding one, another molecular orbital will be anti-bonding one. तो bonding में कौन आएगा? Bonding में भी sigma आएगा ना, sigma bond बनेगा 1s का. तो 1s का जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा दैट इज द बॉन्डिंग ऑर्बिटल सिग्मा 1s. ठीक है, अभी ऊपर में कौन जाएगा, ज्यादा एनर्जी किसका है, एंटी बॉन्डिंग का है. तो एंटी बॉन्डिंग का क्या होगा, सिग्मा 1s स्टार. ठीक है, ये हो गया आपका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल. तो ये बन गया आपका सिग्मा 1s क्यों पहले आया और सिग्मा 1s स्टार क्यों बाद उसके ऊपर आया, उसका एनर्जी क्यों ज्यादा है, ये तो आपको ऑलरेडी मालूम था. तो इसको लेके डरने का कुछ नहीं है. 1s सिर्फ सिग्मा बनाता है और इसके लिए सिग्मा बनाने के बाद जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उसका जो नीचे वाला पोर्शन रहेगा वो होगा बॉन्डिंग वाला, जो उसको हम लोग बोलेंगे सिग्मा 1s. और ऊपर वाला जो रहेगा वो होगा एंटी बॉन्डिंग वाला जिसको हम बोलेंगे सिग्मा स्टार 1s. तो नीचे वाला क्या होगा, सिग्मा 1s. ऊपर वाला क्या होगा, सिग्मा स्टार 1s. ठीक है, याद रहेगा. नेक्स्ट उसके बाद 1s के बाद अपना क्या आता है, 1s के बाद आप लोग जब फिलअप करते थे 1s के बाद आता है 2s. तो 2s मतलब फिर से एस ऑर्बिटल. एस ऑर्बिटल क्या बनाता है, कौन सा बॉन्ड बनाता है एस ऑर्बिटल. एस ऑर्बिटल आपका फिर से सिग्मा बॉन्ड बनाता है, पाई बॉन्ड तो बनाता नहीं है. तो सिग्मा बॉन्ड अगर बनाता है तो फिर उसका एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा जिसको हम बोलेंगे सिग्मा 2s और उसका एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा जिसको हम बोलेंगे सिग्मा स्टार 2s. एब्सोल्युटली सेम एज वी डिड अर्लियर. देखिए ये दोनों तो आपको आराम से ऑलरेडी याद हो गया है, हमको और कुछ बोलने का है ही नहीं.
इसके बाद कौन सा ऑर्बिटल आता है आपका एटॉमिक ऑर्बिटल में, मतलब sp-df, भूल जाइए ये सब जो मैंने लिखा वो भूल जाइए, ये सब आ जाएगा, आप खुद बना लोगे। चलो उसके बाद कौन सा आता है, 1s हो गया, 2s होता है, उसके बाद 2p, 2p में कौन कौन आता है, 2p में आता है 2px, 2py, 2pz, राइट, px, py, pz, तीन ऑर्बिटल है p में। तो p में अगर तीन ऑर्बिटल है वो कौन कौन क्या क्या कर सकता है, पहले हम देखेंगे px वाला। तो px कैसा होता है, px इज px and py both can form only pi bonds, we have already discussed this, okay, both can form only pi bonds। तो क्या लिखा है इधर देखिए, pi to px is equal to pi to py, है ना, pi to px is equal to pi to py। इसने सिर्फ pi बॉन्ड नहीं बनाना है इसको, तो इसीलिए पहले pi to px is equal to pi to py। उसके बाद क्या आता है, 2px और 2py के बाद pz आता है आपका, लेकिन pz का ऐसे रहता है pz, ठीक है। सो pz सिर्फ आपका pz जो है वो आपका सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तो pz अगर सिग्मा बॉन्ड बनाएगा तो सिग्मा 2pz, करेक्ट। तो इसका देखिए क्या हो रहा है, पहले हम लोग बॉन्डिंग वाला समझेंगे। 2px और 2py का जो एनर्जी होता है, जब दो 2px दो 2py मिलता है तो पाई 2px पाई 2py वाला जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उसका एनर्जी सेम होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, पाई 2px और 2py का एनर्जी सेम होता है, ठीक है। तो ये सबसे नीचे है, क्यों नीचे है, क्योंकि px और py का एनर्जी से pz का एनर्जी ज्यादा है, ठीक है, pz एटॉमिक ऑर्बिटल के एनर्जी थोड़ा ज्यादा है, ठीक है, इसीलिए जो सिग्मा 2pz बनेगा उसका एनर्जी ऊपर में है। क्योंकि हम लोग ऑलरेडी लास्ट कुछ देर पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, ये एटॉमिक ऑर्बिटल का जो एनर्जी होगा उसके ऊपर बेस करके आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी मिलेगा। तो 2pz का एनर्जी थोड़ा ज्यादा है, इसीलिए सिग्मा 2pz का एनर्जी भी थोड़ा पाई 2px एंड पाई 2py से ज्यादा है। इसीलिए pz जो बॉन्डिंग करता है, pz जो बॉन्डिंग करता है वो सिग्मा बॉन्ड है, उसका एनर्जी तो थोड़ा ज्यादा है, ये तो मानना पड़ेगा, उसका एनर्जी तो थोड़ा ज्यादा है जो सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है ना। चलो उसके बाद देखो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल समझने का कोशिश करो, कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, बॉन्डिंग वाला आपका हो गया तो एंटी बॉन्डिंग को आप इधर पे कॉपी कर दो ऊपर में, सिर्फ ये उसके ऊपर रहेगा। तो ये अगर पहले पाई 2px और पाई 2py आया है तो इधर पे पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py आएगा, और सबसे ऊपर में रहेगा आपका सिग्मा स्टार 2pz। हो गया, ये भी खत्म। तो हम लोगों ने जो ये किया है, सिर्फ यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेसी है, आपको याद रखना है कि 2px और 2py का एनर्जी सेम होगा, उसके ऊपर 2pz जाएगा, लेकिन क्रोनोलॉजिकली पहले px और py उसके बाद pz, ठीक है, क्रोनोलॉजिकली जाएगा, अलग से कुछ जाएगा नहीं। अभी याद कैसे रखना है, ऑलरेडी तो याद हो गया, याद कैसे रखना है, ठीक है। चलो और एक शॉर्टकट है, शॉर्टकट नहीं है, समझने लायक कुछ है, मैं समझाता हूं तुम लोगों को। देखो, if I talk about atomic orbitals, how does it go? 1s, 2s, 2p। तो 1s में क्या कौन कौन आ सकता है, एक बॉन्डिंग आ सकता है, एक एंटी बॉन्डिंग आ सकता है। एंटी बॉन्डिंग का एनर्जी बॉन्डिंग से ज्यादा होगा, तो पहले सिग्मा 1s, उसके बाद सिग्मा स्टार 1s, हो गया। 2s में कौन आ सकता है, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग, सेम लाइक दिस, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, हो गया 2s, हो गया। नेक्स्ट 2s के बाद कौन आएगा, 2p आएगा। 2p में क्या होगा आपका, पहले आपका px py को देखना पड़ेगा, px py का एनर्जी सेम होता है, सो पाई 2px पाई 2py हो गया, पाई 2px पाई 2py, ठीक है। उससे थोड़ा ज्यादा एनर्जी किसको होता है, pz को होता है, लेकिन pz तो सिर्फ सिग्मा बनाता है, तो सिग्मा 2pz। उसके बाद उसका ये एंटी बॉन्डिंग वाला लिखना है। तो देखो पहले 1s 2s 2p याद रखो, उसके हिसाब से लिख दो, खत्म, है ना, अलग से कुछ याद करने का नहीं है। लेकिन और एक कॉम्प्लिकेसी डाल दिया इधर, कुछ होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स होता है, होमोन्यूक्लियर मतलब जिसका न्यूक्लियस सेम होता है, कुछ होता है, तो उसमें ये तीन जो मॉलिक्यूल है O2, F2 और Ag2, इस केस में थोड़ा एक्सेप्शनल बिहेवियर देखा गया है। तो फॉर दिस एक्सेप्शनल बिहेवियर आपको सिर्फ एक चीज याद रखना है, आप यहाँ पे थोड़ा नजर डालो, इधर पे पाई 2px पाई 2py के बाद सिग्मा 2pz आता है, पाई 2px पाई 2py के बाद सिग्मा 2pz आता है। लेकिन इन केस ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स इसको थोड़ा आपको एक्सचेंज करना है। कहां पे एक्सचेंज करना है, सिर्फ बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है, सिर्फ बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इधर पे एक्सचेंज करना है, इसीलिए एरो डाल के देख रखा है थोड़ा, इधर पे हमने एक्सचेंज किया। लेकिन एंटी बॉन्डिंग में जैसा है इसके बाद ये वाला था, इधर भी इसके बाद ये वाला ही है,
एंटी बॉन्डिंग में जैसा है वैसा ही रखो, सिर्फ बॉन्डिंग में एक्सचेंज कर दो। कौन कौन सा मॉलिक्यूल के लिए? O2, F2 एंड Ne2 याद रहना चाहिए, ठीक है। सो दिस आर द रूल्स ऑफ फिलिंग अप द ऑर्बिटल्स, ठीक है। थोड़ा अपने जहन में लो, अच्छी तरीके से पढ़ो, रीड इट वेरी केयरफुली so that you don't miss it out, understand it so that we don't lose marks on this. This is a very easy part, perhaps the most easiest part of the total chemical bonding chapter. इसमें से इजी क्वेश्चन आता है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आता ही नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग फिलिंग अप भी करेंगे सर्टेन मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। हम फिलिंग अप करेंगे, एक तो एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे लेकिन सबके नहीं बनाएंगे, ठीक है। एंड विल टॉक अबाउट अदर कॉन्सेप्ट्स ऑल्सो, ठीक है। सो यह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। आफ्टर दिस विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। थैंक यू।